Student, this is part 2 video. In our previous video, part 1, we revise a chapter that is pronoun review, and we start a little bit about the second topic, that is about first, second and third person. We already did the definitions in part 1 video. Let me revise you again in this part 2 video so that you can easily do your exercise. So first person कौन होता है? जो बोल रहा है, यानी कि मैं बोल रही हूँ आपसे. सो आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड द वर्ड्स दैट यूज इन फर्स्ट पर्सन, यानी कि जब आप पहले इंसान जो बात कर रहा है वो तो वर्ड यूज करेगा. वो कौन कौन से होते हैं? इट्स आई, माई, मी, वी, आर एंड अस. So these are the words that we use for the first person, or the person who is speaking is called first person. Next, who is second person? Second person कौन होता है? Second person कौन है यहाँ पे इस वक्त? आप लोग. Why? Because I am talking to you and you are just listening. Sometimes आप पूछते भी हो. So you are, in short, you are the second person. And the words that use for the second person is you, your and yours. These are the words that used in a second person, or the person or the one who is spoken is called second person. Now third person कौन होता है? Third person, here the third person is that book, because हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुक के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन होता है? बुक. And the words that used in a third person, or the pronouns that we used for a third person instead of the names, that is he, she, it, they and their. These are the pronouns that we used for a third person, or the one who is spoken about, that is your third person. So I hope that you all clear about the persons कि कौन कौन से persons होते हैं and which pronouns we used for which person, right? And pronouns are those words, or these words are those words that we use instead of the names. Instead of nouns, we use the words, or we use the pronouns that is it. Now we are going to talk about what is subject and object. Here is a table to help you remember which pronoun to use. ये आपका टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. आपकी बुक्स में आपको होगा पेज नंबर 29 के पास. बुक्स हैं आपके पास, बुक्स में देखिए. जिनके पास बुक्स नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बोरो योर बुक्स फर्स्ट, परचेज योर बुक्स, because it is very helpful to you, so that you can do your exercise very easily or understand the chapter very easily. So those students who do not have books, just watch the screen. So let's start. What is subject and what is object, और this may help you to remember कि आपको कौन सी pronoun यूज़ करनी है. अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यानी कि पहले इंसान है और सिंगुलर है, एक है, तो कौन सा सब्जेक्ट होता है आपका? आई. ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी. बोथ आर द सेम मीनिंग, बट द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इफ अ फर्स्ट पर्सन इज सिंगुलर, subject is I and object is me. If second person singular, अगर second person singular है, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हो वो एक है, so what will use? You. और objective में क्या रहेगा? You. Subject और objective जो होता है second singular person में, वो आपका सेम रहता है, right? अगर थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बुक है, क्या है? एक बुक है, राइट? क्या है? ये सिंगुलर है. अब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई वस्तु हो, ही, शी, इट. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में बात करें तो ही रिप्लेस किससे होगा? हिम से. शी किससे होगा? हर से. और इट दोनों में सेम रहता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस मैटर इज सेम, राइट? मटेरियल आपका सेम है. अब फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल है, यानी कि जो बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन बोल रहे हैं, वो आपके एक से अधिक है, तो क्या यूज़ करते हो? वी. बट इन ऑब्जेक्ट यू यूज़ अस. अगर सेकंड पर्सन प्लूरल है, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हो वो बहुत सारे हैं, तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखते हो? उसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू. ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू. यू आपका सेम रहता है, यानी कि जब हम किसी सेकंड पर्सन से बात करते हैं, फिर चाहे वो सिंगुलर हो आपका, चाहे प्लूरल हो, वो आपका सेम ही रहता है, यू ही रहेगा, तुम ही रहता है, राइट?
नाउ द थर्ड पर्सन, इफ़ योर थर्ड पर्सन इज़ प्लूरल, यानी कि अगर हम इस बुक की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, या फिर आप जब तीसरे बंदे के बारे में बात करते हो वो बहुत सारे के बारे में बात करते, तो आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते? इंस्टेड ऑफ दे यू यूज़ दैम। क्लियर है? यू हैव टू लर्न दिस चार्ट वेरी केयरफुली, बिकॉज with the help of this chart you will able to do your exercise in books. So let's move further. Page number, turn your page number 30. In page number 30, the first topic is presentation, means you have to read that story. After that you have to answer the questions that are given to you in your books. So let's start. Read a story. I would like to tell you about my neighbor. मैं तुम्हें अपने नेबर के बारे में, नेबर कौन होता है? जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके पड़ोसी को क्या कहते हैं? नेबर। उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पुतिन नेम, ही हैज़ इमिग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम चाइना, मीन्स वो इंडिया आए हैं चाइना से। हिज पेरेंट्स ब्रॉट हिम हेयर व्हेन ही वॉज 6, उनके पेरेंट उसे यहाँ पे तब ले आए थे जब वो 6 साल का था, मीन्स चाइना से यहाँ आए हैं इंडिया, एंड अपने साथ अपने जो बेटा लाए हैं वो तब यहाँ शिफ्ट हो गए थे जब वो 6 साल का था। नेक्स्ट, दे ऑल स्पोक ओनली चाइनीज़, यानी कि वह सब चाइनीज़ ही बोलते हैं। पुतिन क्विकली लर्नड इंग्लिश एंड नाउ ही स्पीक इट वेरी वेल, पुतिन ने बहुत जल्दी इंग्लिश सीखी है एंड वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। हेयर द नेम रिप्लेसेस द वर्ड प्रोनाउन, नाउन रिप्लेस द वर्ड प्रोनाउन, प्रोनाउन रिप्लेस द वर्ड नाउन। नाउ थर्ड वन इज पुतिन टोल्ड अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चाइना, पुतिन ने हमें चाइना की हिस्ट्री बताई। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई वुड लाइक टू ट्रैवल देयर विद हिम समडे, क्या वो उसके साथ घूमना पसंद करेगा वहाँ पे चाइना पे? सो हियर द स्टोरी एंड्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एज पर द स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लैंग्वेज डिड पुतिन एंड हिज पेरेंट्स स्पीक, पुतिन और उसके पेरेंट्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आंसर इट। विच लैंग्वेज डिड पुतिन लर्न, पुतिन ने कौन सी लैंग्वेज सीखी है यहाँ आने के बाद? What did पुतिन टेल एवरीबडी, पुतिन हर किसी को क्या बताता है? नेक्स्ट, बी एक्सरसाइज, राइट पर्सनल प्रोनाउंस फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन फ्रॉम द स्टोरी अबव। आपको ये आई, यू, माई, ही, हिज, हिम, दे, ही, इट, यानी कि आपको जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स दे रखे हैं ये आपको डिस्टिंग्विश करने हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मीन्स फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो आपको लिखने हैं। आपको पेज नंबर आगे दे रखे होंगे, पेज नंबर 29 पे आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं। एंड सेकंड पर्सन के लिए आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो वो आपको लिखने हैं। थर्ड पर्सन के लिए कौन कौन से लिखते हो वो आपको लिखने हैं। कुछ नहीं करना, आपको आराम से बैठ के स्टोरी पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। आपकी जो एक्सरसाइज आपको बुक में दे रखी है उसके सारे ही आंसर आपको आगे पेज नंबर्स पे मिल जाएंगे। आपको बुक्स में ही ऑलरेडी गिवन है, बस आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, लेट्स एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर ए, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, अंडरलाइन द प्रोनाउन, यानी कि आपको जो सेंटेंस दे रखे हैं आपको उनको पढ़ना है एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है उसमें अंडरलाइन करना है। आफ्टर देन यू हैव टू राइट वेदर द प्रोनाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि आपको अंडरलाइन करने के बाद ये लिखना है क्या वो प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। पहली करते हैं, बॉबी वेंट टू द लाइब्रेरी विद हिम। अब इसमें प्रोनाउन क्या है? हिम, यानी बॉबी उसके साथ लाइब्रेरी गया। हिम यहाँ पे प्रोनाउन है, आई अंडरलाइंड इट। नाउ ये सिंगुलर है या प्लूरल है, अब हमें ये बताना है। ये आपका सिंगुलर है, हिम मीन्स वो। सो ऐसी आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है, सेंटेंस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है प्रोनाउन में। आफ्टर देन आपको बताना है सिंगुलर है प्लूरल है। फर्स्ट आप पहले यही एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज नंबर ए, बी एंड लेट्स एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर ए।
So here the new topic that we start is first, second and third person is also completed. एंड जितनी एक्सरसाइज आपको दी हैं वो आपको अपनी बुक्स में करनी है. डेफिनेशंस आपको कॉपी में करनी है, जिसकी जितनी भी डेफिनेशंस नए टॉपिक की डेफिनेशंस हैं, जैसे आप थर्ड क्लास में करते आए हो ना, हर टॉपिक की डेफिनेशंस लिखते हो, ऐसे डेफिनेशंस आपको लिखनी है. बुक्स में आपको एक्सरसाइज करनी है. एंड कॉपी में जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज ए और बी होगी लेट्स एक्सरसाइज में. लेट्स एक्सरसाइज की जितनी भी एक्सरसाइज नंबर ए एंड एक्सरसाइज नंबर बी है वो आपको करनी है. फिलहाल इस टॉपिक के अभी आपको एक्सरसाइज नंबर ए डेफिनेशंस और एक्सरसाइज नंबर ए करनी है. बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.